अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट सरोश एंड टुडेज एपिसोड इज़ फीमेल ओरिएंटेड। दिस डज नॉट मीन कि जो मर्द हजरात है वो ये एपिसोड नहीं देख सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह जो एक मेन टॉपिक है रिगार्डिंग ऑक्यूपाइंग पब्लिक स्पेसेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ पाकिस्तानी वुमन, किस तरह से उसको देखा जाता है, किस तरह से हम एक everyone is playing their own role in trying to transform how women can occupy public spaces. And for that, we have with us Aisha Sipra today. She is known by her Instagram handle Sarko Sarki. And वो अपनी बाइक पर ट्रैवल करती हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस से, अपनी डिजिटल प्रेजेंस से ट्रांसफॉर्म किया कि किस तरह हम पाकिस्तानी औरतों को देखते हैं, हाउ दे ऑक्यूपाई पब्लिक स्पेसेस एंड हाउ दे आर गोइंग अबाउट इट। सो let's have a chat with her. Let's see how her journey has prolonged over the year. Thank you, Aisha, for joining us. Thank you for inviting. सबसे पहले तो योर यूज़र नेम, मैं उसके बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए, बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस। एक तो मैंने पहले प्रोनाउंस उसको गलत किया था एंड देन माई एम्प्लॉय करेक्टेड मी, शी वाज लाइक नहीं सड़को सड़की है ये। तो मैं जानना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, हाउ डिड यू कम अबाउट दिस Yeah. हैंडल? तो हम brainstorm कर रहे थे a while ago. It's been about 5 years. जब मैंने YouTube चैनल बनाया था, started with that first. My brother was running his own. जी। So he introduced me to motorcycles and traveling. Oh, So we were brainstorming and he came up with this. And at first I thought this is very stupid. And then he was like, ठीक है मत मानो, कोई भी मेरी बात नहीं मानता about this. He had suggested this to somebody else also. So but you'll see this works. फिर I thought about it and I really liked it इस तरह से कि it actually explains everything. I am trying to promote traveling, yes, but by road. That's my main focus. So Sarko Sarki is very self-explanatory, so that helped. So that's about the name. It's very fascinating to hear that you looked up to someone in a way, like you talked about your brother. एंड अक्सर वैसे नॉट टू जनरलाइज बट अक्सर ऐसे होता है कि बहनों के लिए भाई होते हैं, दे अगर बड़े भाई आपके बड़े भाई हैं राइट, तो होता यही है कि दे लुक अप टू देम एंड आई डोंट थिंक इट्स, आई थिंक बहनों में ज़रा कम होता है बिकॉज विद सिस्टर्स इट्स लाइक आप चाहते हो कि आपकी अलग पर्सनैलिटी हो एंड ये, बट विद ब्रदर्स इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, डोंट यू एग्री? I only have 2 brothers, so I don't know the sister वाला dynamic. लेकिन हाँ, I understand शायद कुछ ना कुछ, but I've also seen कि in envying siblings, elder siblings, जब वो भाई होते हैं different gender, तो मैंने ये भी notice किया कि people look up to them, but sort of like थोड़ा distance से. Not everyone is trying to be that same boat में, बिल्कुल। because that's not encouraged. So you can learn from them. You can just be very happy about how your brothers are doing things in their lives, but आपका first thought आपकी यहाँ नहीं जाती कि oh I also want to do this, because that's not encouraged usually. So that was different for me. That also helped a lot. Maybe it's also because how one is raised, आपकी हर एक स्पेस के अपनी फैमिली डायनामिक्स होते हैं Definitely, yes. एंड उसके हिसाब से यू आर नर्चर्ड एज अ चाइल्ड कि आप फिर आप डिसाइड करते हो डू यू वांट टू डेवलप योर ओन पर्सनालिटी और डू यू वांट टू जस्ट डू व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, Yeah. राइट? Yes. मैं सिंस यू ऑलरेडी ब्रॉट अप फ्रेंड योर फैमिली, मैं जानना चाहती हूँ कि लाइक व्हेन यू डिसाइडेड कि okay this is an agenda I have in mind, so what is the sort of response you receive from your family? So my immediate family, Abbu, Ammi. Ammi is like any other mother, she is always scared कि अच्छा। चोट लग जाएगी, गिर जाऊंगी, उस तरह की चीज़ें. लेकिन अब्बू, so it didn't start as a revolutionary journey. It started as a need. Okay. He said, my father used to say कि he was very clear about these things शुरू से कि a man should know how to cook,
and a woman should know how to go about her way and do things on her own. Ride a motorcycle, ride a cycle, a car, क्योंकि वो सबसे पहली चीज़ आती है ना. Mobility is the first thing if you want to do anything in your life. बिल्कुल. So up to things have changed, it's digitalized, you can do a lot sitting at home, but that wasn't the same when he was young. So he saw his sisters suffering इस चीज़ को लेके. बिल्कुल. So it started as that. We didn't have any बहुत deeper meaning to it. I didn't understand it at first. In all honesty, I was 18. तो मैं उसको उसी चीज़ की तरह देखती थी कि हाँ, I need to learn how to ride a motorcycle because I need to go to university. So let's just do that. My brother was traveling around Pakistan North motorcycle पे, तो I was fascinated already. बिल्कुल. There was a little spark वहाँ पे भी. But then अब्बू ने मुझे सिखाई बाइक चलाना. And he क्योंकि brothers are not usually patient इतने गाड़ी चलाना सिखाने में या बाइक, तो they were very encouraging, yes, but they didn't have enough patience for it. So that's where my father came in. He taught me how to ride, and he was very supportive. He is just supportive. उसको मैंने जब traveling की तरफ लेके गई, he was encouraging, तब भी concerned, but yes, he lets us do our own thing, all three of us. So that is very balanced. That has been that way हमेशा से. But extended family, of course, कुछ problems आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो थे, but then we live separately, so that doesn't matter बहुत ज़्यादा. लेकिन as a young like teenager or very in your early 20s, if you're being criticized for something which to you it's very innocent, so that kind of shifts your mind. And I feel like जब वो चीज़ें होना शुरू हुई तो तब I actually got more passionate about this, and I realized कि okay, like why is this a problem? So I couldn't find a reason why it can be a problem, and then I'm like, okay, how many people are thinking this as a problem? So I think वो थोड़ा उल्टा play कर गया for everybody else. Yeah. But yeah, आई थिंक आपकी हम एक सर्टन एज में जब होते हैं, स्पेशली लाइक प्री टीन्स और कर लें अगर आप, तो उसमें ये होता है कि हमें अक्सर चीज़ों का नहीं पता होता. हम अपनी इनोसेंस में हमें लगता है कि दीज आर नॉर्मल थिंग्स. yes, A girl wanting to learn how to drive, or like a boy wanting to cook, be in the kitchen. एक लड़के के लिए शायद वो एक आम सी चीज़ हो, एंड यू विल लाइक अगर मामा कर सकती है तो मेरा भी दिल करता है कुछ बनाने को. But it's not until someone points it out that you're like, what? ये normal नहीं है. But is there something like not अब थोड़ा exaggerate मैंने कर दिया, but is there something wrong with me कि मैं चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ कि मैं ये चीज़ें करूँ? yeah, So for some like you, like जिस तरह आपने approach किया, for me these things were like I became almost revolutionary. जितना लोग कहते थे कि ये चीज़ नहीं, yeah, I like the more I want to do it. So Yeah. क्यों नहीं कर सकती मैं? It's something I want to do. मेरे दिल में ये बात आई है. Why can't I? Right? yes, definitely. What about your friends? How do they view it? I'm sure उनका response तो entirely different होगा. We're so everyone is supportive, और लेकिन हाँ, there are so a couple of years ago I was on the road and someone grabbed my arm चलती बाइक से and tried to pull me और गिराने की कोशिश. और तो they were doing their own like jokes and funny games while a couple of kids, I think. So I remember a friend got really mad at me for just being very stubborn about this. Okay. So he said, "Okay, why do you have to do this? Like you have two brothers, you can just do things किसी और तरीके से भी. People are getting successful, getting education and cheese. So it's not the only way. So why can't you just let it go?" अच्छा. Okay, in terms of protecting your loved ones, you sometimes become very emotionally Reactive. yeah. तो इस तरह के भी reactions आए हैं, but then now he has come around to it. All of those friends जो तब concern में कहते थे रुक जाओ, अब वो कहते हैं हाँ, you did the right thing. So
आई थिंक जब पेरेंट्स कह रहे होते हैं या फिर फैमिली कह रही होती है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है कि वो लाइक यू आर ट्राइंग टू गेज मी। व्हेन फ्रेंड्स से तो आप थोड़े ज़्यादा यू लिसन थोड़ा I think hard. या कि हाँ अच्छा ओके लाइक पर्सनली तो इस बंदे को कोई बेनिफिट नहीं होगा Yeah. तो क्यों कह रहा है, अच्छा मेरे लिए कह रहा है तो। लेकिन देन दिस इज अ थिंग के इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग हमारी अप्रोच थोड़ी सी गलत रही है हमेशा से। सो वी प्रोटेक्ट बाय जस्ट कीपिंग द पर्सन इन अ टेरिटरी। That's how we protect. But- That's how we protect our sisters, our mothers, everyone, Mm. kids. Lekin if you don't teach us how to do it when we're by ourselves, we will be eventually by ourselves. Mm. तो तब तो लोग मतलब मुझे लगता है आप उस चीज़ को जितना अवॉइड कर रहे होते हैं उतना ही heavily it comes attacking you Yeah. because you don't know anything then. So that has been important. I talked to that friend उस वक्त भी he didn't agree with me but he was like okay ठीक है whatever but now he does. तो इस तरह से और भी दोस्त हैं जो लेकिन mostly reactions have been really positive and encouraging. People worry a lot. Yeah. नॉर्थ भी जाना तो पहाड़ों में चलानी बाइक और इस तरह बिल्कुल. लेकिन दैट स्टेज वो वरी तक they have to like just sit back and let me do my thing Yeah. because in the end pata hota hai. Yeah. They also see how this is panning out and how people are being helped. If you're bringing thoda sa bhi change, I think it's better than not doing anything at all. So yeah. I think with parents, it's like, you know, आपने जैसे भी बात की, they spend most of their lives trying to protect us, thinking that they're doing it for our betterment. लेकिन they're not equipping us with those skills जो हमें चाहिए होती हैं when we become adults और हमें we step out into the real world for the first time और हमें होता है कि अब हम क्या करें. Yeah. तब हमारे कोई हाथ में हथियार नहीं होते हैं. Like, how do we fight these battles अकेले में? Exactly. Uh, I think अगर हम इन चीज़ों पे ना भी सोचें ना so whenever I talk to people who are not very into education या ऐसी चीज़ें कि उसका कंसर्न ये नहीं है गांव में या ऐसे जी. तो वो तबका जो पाकिस्तान में जिनका बिगेस्ट कंसर्न इस वक्त ये नहीं है कि if their daughters are educated it's food and it's other things and they want to get their daughters married. And I understand where they are coming from. Like we were talking about it pehle ke we need to know ke what the other person has experienced to have such beliefs. बिल्कुल. So I understand all of that. So when I have conversations on logon se, I also try to show them this perspective ke if you don't teach your daughters how to protect themselves, they won't be equipped mothers either. बिल्कुल. They will be always dependent on a husband and I'm not ये सिर्फ एक सिनेरियो है ना कि a man turns out to be a bad man जी बिल्कुल. but another scenario is what if something happens to him, what if you're left alone just because of that, like not that person, like we don't always have to attack the other person कि वो बुरा होगा या कुछ होगा, it's just that anything can happen. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. If you're by yourselves, you have your little kids, आप बेवा है, how आप कैसे उनको स्कूल लेके जाएंगी, आप कैसे पढ़ाएंगी, आप नौकरी कैसे करेंगी, फिर आप जिस रिक्शे में बैठ के करने जाएंगी नौकरी वहाँ आप हरास होंगी, आप घर बैठेंगी, फिर एक और मर्द कोई ना कोई आएगा आपकी तस्वीर में जो आपको उस चीज़ से निकालने की कोशिश करेगा, बट मोस्टली देयर विल बी अ प्राइस टू पे. So it goes a long way. It's not just about like people just see it as they're trying to be modern, they're trying to be this and that, not trying to be anything, just trying to be independent, not be a weight on anyone when the time comes. People think it's a scary word ना औरत का financially independent होना, secure होना. They think कि नहीं वो structure क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं ऐसे ये औरत ये आदमी ऐसे ठीक है, हम अच्छा लग रहे हैं, लेकिन ऐसे वो that's scary. So that's very concerning. You're right. Also, ऐसे cases में you were just talking about the man. I was also thinking कि एक बच्चे का relationship अपनी माँ के साथ भी सफ़र करता है जब उसे पता चलता है कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जब realization होती है, then it gives birth to these feelings कि okay मेरी इसको क्या पता, इन तो पढ़ी भी नहीं है, you don't know anything.
फिर वो बाप को देखते हैं, चाहे चलो अगर बेटा हो फॉर इंस्टेंस, फिर वो बाप को देखेगा कि बाप तो इस तरह बात करता है तो फिर मैं भी ऐसे ही करूँ। Definitely. मैंने ऐसी रियल कहानियाँ सुनी हुई हैं जहाँ पे ये ऐसे होता है, चिल्ड्रन जस्ट लाइक मिमिक व्हाटएवर इज हैपनिंग एट होम। ये चीज़ें भी कंसिडर करनी होती है, राइट? Definitely. What are like some of the biggest challenges जो आपको फेस करने पड़े as someone who's just riding her bike? कोई ऐसी स्टोरी कहानी that pops in your head? सबसे बड़ी चीज़ तो जो अभी तक भी है, इट्स बिन 6 years जब से मैं चला रही हूँ मोटरसाइकिल, लेकिन अभी तक है और आई थिंक वो रहेगा कि फॉर अ मैन इट्स यू डोंट हैव टू गिव मच थॉट, यू वांट टू गो आउट ऑन अ राइड, यू गो. जी। फॉर मी आई हैव टू सी माई रूट, मैं कहाँ से जा रही हूँ, मुझे देखना है वो इस वक्त उसमें कितना रश होगा, बिकॉज आई नीड पीपल अराउंड, बट आई ऑल्सो नीड सर्टन काइंड ऑफ पीपल अराउंड. तो मैंने देखना है उस चीज़ को भी, मैं कितने बजे जा रही हूँ, मैं कब वापस आऊँगी. इवन कि अभी जैसे ये चीज़, सो आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वाइल, बस सोशल मीडिया यू नो हाउ इट इज, यू गेट अटेंशन फॉर द थिंग्स यू डोंट एक्सपेक्ट यू वुड. बिल्कुल I was on top of mountains, तो nobody knew. अब people know some. तो लेकिन अब आके ये कंसर्न घर से भी रेज होता है कि अच्छा डोंट टेक द सेम रूट बार बार. People are going vehicle. So these things unnecessary but very necessary. तो ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा problematic मुझे लगता है. These are this is something you have to do every time ना. Anything that happens on the road, in all honesty, उस तरह के cases के harassment या being called anything है वो बहुत कम हुआ है. In these 6 years, I have barely experienced it twice or thrice. वो भी I don't remember the third time. So एक जो मैंने अभी mention किया था, someone pulled my arm, yes. जी। लेकिन उसके अलावा बहुत कम. So people think कि I am trying to show them a very happy go lucky wala. That's not true. People are accepting this. जी। लेकिन that's the thing. I am very careful भी. So it goes both ways. बिल्कुल। तो that I have to be very cautious. You know, I think this is a story of every girl. मैंने even though मैं सफ़र ये करती हूँ गाड़ी में, as in मैंने कैब बुक की है, ठीक है, मगर मैं ये देखूँगी मैंने कौन सा राउट लेना है. 2-3 हैं, मैं कोई भी पिक कर सकती हूँ, बट आई हैव टू पिक जो मुझे सबसे सेफ लगता है. कि नहीं यहाँ पे ज़रा घर वगैरह हैं तो रोशनी है. फिर मैं देखती हूँ अच्छा अगर मुझे देर हो गई तो फिर क्या करूँ. फिर घर से पूछती हूँ कोई है अगर पिक करने वाला, कि कैब अवॉइड कर लेती हूँ नो कि आज देर हो गई है. फिर यू व्हाट एल्स डिड यू टॉक अबाउट, ये छोटी मोटी चीज़ें होती है. आपको इनका हमेशा लाइक रोज़ का एक बैटल है माइंड. एंड फॉर अस वुमेन ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि ओ नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है आप तो रोज़ ही सोचते इतना ध्यान, बट इट्स नॉट अंटिल यू एक्चुअली सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट कि ये हमारी रोज़ का एक माइंड में टसल होती है. ऑल्सो जो ये आपने पब्लिक स्पेसेस में औरतों की बात की कि लोग आप जो अगर बात करती हो कि इतना मेरा नहीं रहा एक्सपीरियंस, इसके ऊपर पूरी डिबेट हुई हुई है ऑनलाइन, जिस तरह के एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है. बट डॉक्टर बिलाल नोन एज मिस्टर पाकी ऑन इंस्टाग्राम, राइट, तो he basically posted this one reel about औरतें कितनी होती है पब्लिक में, like not on the street but in the sense कि बाज़ारों में कितनी नज़र आती हैं, कितनी. और इतनी लंबी वहाँ डिबेट हुई कमेंट सेक्शन में, एंड men were so pressed at the fact कि आपको क्या पता, even women, कि आपको क्या पता, नहीं औरतें होती हैं बाहर, आप what do you know. एंड आपने रेशो, यू लुक एट द रेशो, नजर आती है औरतें लेकिन रेशो देखो ना, 10 आदमी होंगे उसमें 2 औरतें चल रही हैं, तो दैट्स अ रेशो. एग्जैक्टली. एंड मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी. अक्सर मैंने देखा है इन स्टोर्स, अगर मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, अक्सर, बहुत कम ऑब्वियसली काफ़ी औरतें खुद शॉपिंग करती, बट अक्सर केसेस में मैंने देखा है कि मर्द आए हुए होते शॉपिंग करने के लिए, द वुमेन आर नोवेयर टू बी फाउंड. मुझे पहले बड़ा स्ट्रेंज लगा था. आई रिमेंबर मैं बहुत छोटी थी, दिस इज व्हेन आई वाज लिविंग इन इस्लामाबाद. नाउ इमेजिन मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, मैं लाहौर की बात नहीं कर रही. और मैं निशात गई थी, एंड आई वाज जस्ट आई लुक्ड एट दिस मैन. वो अनस्टिच्ड कपड़ों वाले सेक्शन में वो निकाली जा रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में देख रही हूँ, लाइक इतने ज़्यादा कपड़े. और
इनकी मामा या बीवी की तरह है। वो तो नजर आए दो मर्द और औरतें शॉपिंग करती, मर्द तो कपड़ों की, इन्होंने क्या करना है उस वक्त। इतनी जितनी मुझे लिमिटेड नॉलेज थी मेरे माइंड में, इवन वो अपनी बीवियों के लिए ही ले, बट इट्स लाइक दे वर नोवेयर टू बी फाउंड। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये एक रियलाइजेशन थी कि ऐसे भी होता है। एंड माई मदर, आई वाज क्यूरियस एज अ चाइल्ड, देन माई मदर एक्सप्लेन्ड टू मी कि कभी कभी बेटा कुछ घरों की औरतें नहीं बाहर आती, एंड वो बस उनके मर्द वगैरह आते हैं, वो ज़्यादा कपड़े ले जाते हैं, देन दे यूज इट थ्रू आउट द समर्स मोस्टली, उस पर कपड़े ज़्यादा हमारे लगते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं। some of my family members, like I've seen this in my family also. जो मेरे लिए भी फॉरेन था, क्योंकि हम अलग रहते हैं, तो मैंने तो वही आप देखते हुए बड़े होते जो आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल माई मदर हैज़ ऑलवेज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड, लाइक इवन बाहर की भी चीज़ें वही कर रही होती। बिल्कुल बिल्कुल माई फादर जस्ट वर्कed really focused on that. यस लेकिन everything else she held everything else. यस करती सेम। थी। तो वो उसको देख के तो और ज़्यादा अजीब लगता है ना, कि आप किसी और को देखते हो तो वो द वुमेन आर नॉट इवन शॉपिंग फॉर देमसेल्व्स या डूइंग द थिंग्स जो कि अपने लिए ही सिर्फ करनी है। वो अलग बात है कि आप खुद से जा रहे हैं या नहीं, वो साथ भी नहीं जा रही है। यस तो दोज थिंग्स वेर थोड़ी, अब वो आप बात करते हैं तो लगता है लोगों को ये क्या बात है, इसमें क्या कंसर्न, बट just think about it. You're stuck at home all the time. You don't, what you don't know you won't miss, लेकिन you don't know so much. एग्जैक्टली। तो आपको पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। That's sad. इट इज सैड इफ यू थिंक अबाउट इट, लेकिन सोचते नहीं है ना लोग, उनको बस एक बबल में हम हैं, उसके अंदर हम रहना पसंद करते, वो बर्स्ट कोई ना करे। रहना हम आसान लगता है है ना? कि हम रियलिटी को देखेंगे, फिर we'll have to hold ourselves accountable for what we are doing ये तो for नहीं it. करना है। तो फिर we choose to just look the other way. Maybe हाँ। they're happy this way. Maybe they want to be this way. Oh, वो content है। The rest of the world is the rest of the women जो who make up a certain specific population of this country are not satisfied. मैं since you have mentioned कि you know you have your travels have taken you places north हो गया, you have been, मैं जानना चाहती हूँ कोई ऐसी जगह आपके माइंड में जो आपको लगा हो कि ये सबसे खूबसूरत जगह थी जो मैंने एक्सप्लोर की, मतलब ये इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे, कल्चर होता है, लोगों की तहजीब अखलाक होता है, टचेज यू, कोई ऐसी जगह? By terms of people, हुंजा बहुत प्यारा है, लोग बहुत अच्छे हैं, you feel very safe. तो हुंजा के लोग they're very welcoming. अच्छा। Go there and you feel like everyone is your friend. तो वो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात और जो लगता है कि एक्सपीरियंस नहीं कर सकते आप शहरों में कहीं पे भी, वो ये है कि नो वन विल मेक यू अनकंफर्टेबल विद देयर लुक्स, विच इज़ वेरी फॉरेन। तो नहीं पता था। अब ऐसे हो गया है कि काफ़ी लोग यहाँ से जाके वहाँ सेटल होना शुरू हो गए, क्योंकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि टूरिज्म बढ़ रहा है, यस तो लोग वहाँ जाके बिजनेस करते हैं। तो जो आपको यहाँ से गए हुए लोग होते हैं, आपको पता चल जाता है वहाँ से। नहीं, we can तो tell. they are sort of थोड़ा सा polluting the environment भी, like in terms of literally भी और mindsets भी। लेकिन हाँ, because यहाँ से जाते हैं, they have their own set of beliefs के क्या पहना हुआ है, क्या करें, लेकिन वहाँ पे लोगों को ऑलरेडी आदत थी of seeing foreigners wearing whatever, walking their ways, फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो वो लोगों के एतबार से मुझे हुंजा बहुत अच्छा लगता है। हुंजा गुलमित इज़ अ स्मॉल एरिया, अच्छा। पास उसके, हुंजा के बिल्कुल पास। तो इट्स अ वेरी नाइस कम्युनिटी, बहुत छोटी सी, और पीपल आर जस्ट लिविंग देयर लाइव्स। और वो ऐसे होता है कि इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, वैसे ही कि इन देयर बैकयार्ड्स you're just looking at mountains and they have their own little world. वाह, बहुत प्यारा लगता है वो। तो गूज़बम्प्स हुए हाँ क्योंकि अच्छा फील हुआ। वही, वो बहुत प्यारी जगह है और लोग बड़े अच्छे हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि मैं कहूँगी कि whenever somebody goes to north, try to live with the locals, अच्छा। क्योंकि a lot of people are opening their doors to this. They also need money, of course. तो ये सोच के नहीं कि वो ये सस्ता पड़ेगा, ये कर लेते हैं, सस्ता नहीं पड़ता, ना ही पड़ना चाहिए। They're giving you better environment than a hotel would.
वो तो सेम लाहौर में, इस्लामाबाद में सेम ही है ना, वही दीवारें वैसा ही लगेगा। तो आपको एक्सपीरियंस विल बी इनवैल्यूएबल, यस, उसकी कोई प्राइस हाँ, नहीं है। if they're charging you equally, if they're charging you a little more, if you can afford it, go for that. क्योंकि I lived with me and my brother, जब हम लास्ट गए थे 2022 में, तो हम रुके वहाँ, और वो बूढ़ी सी आंटी है, वो खाना बनाती हैं फिर हमारे लिए, हम जब भी जाते हैं वहीं रुकते हैं। अच्छा, ही शी हैज़ हर सन भी साथ होते हैं, और अब वो ऐसे हो गया है कि आई नो हर डॉटर, सन इन लॉ, लाइक हम फैमिली उनकी जानते हैं उनको, और क्योंकि दे आर वेरी लाइक अगेन वेलकमिंग है ना, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, दे डोंट गेट कीप एनीथिंग, दे जस्ट टेल यू एवरीथिंग अबाउट द एरिया, जो कि आपको होटल में बैठ के नहीं पता चलेगा। तो टेल यू स्टोरीज कि सालों पहले कैसे था, जब लोग नहीं आते थे तब कैसे होता। इट्स वेरी फैसिनेटिंग, यू लर्न अ लॉट, एंड वो वहाँ का लोकल खाना बनाते हैं तो आप वो खा सकते हैं। yeah. तो बहुत अच्छी चीज़ें निकलती हैं जब आप लोगों से बात करते हैं, तब यू नो मोर अबाउट द प्लेस। It's also about कि going to the north shouldn't be just about being surrounded by mountains. या It should be more about कि वहाँ के खाने क्या है, the way you're talking about it, वहाँ के लोग क्या हैं, they must have stories to share. हमारा language barrier इतना नहीं है कि हम ना समझ सके, और ये सारी चीज़ें, this is a real true experience. यस, And I understand people have their reservations कि वो मतलब किसी के घर जाके ये वो, but if so many people are attesting to the fact, जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, जैसे आपने खुद किया तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है, तो अगर वो खुद कह रहे हैं देन आई थिंक पीपल शुड बी इनकरेजिंग। और क्यों नहीं, अगर हम होटल्स और उसका इतना दे रहे हैं तो दे डिज़र्व जस्ट एज मच उनके लिए भी। और आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा होगा, आपको खाने और वो भी सोच सोच के मुझे हो रहा है कि ये बहुत इट वुड बी सो फुलफिलिंग। या है बहुत ना? कुछ होता है इसमें। आप सिर्फ ये नहीं होता कि आप जगह को देखें या आप लोगों से मिलने बात भी करें, बट देन दे नो द प्लेसेस नो वन एल्स विल टेल यू, Yes. they'll take you there, तो वो बहुत अच्छा होता है। प्लस आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों की जगह वो उनकी जगह है ना, Yes. रिस्पेक्ट दैट कि हाँ ये उनकी जगह है, वी आर गेस्ट, तो उनका भी कोई फ़ायदा करते हैं आप। तो जब लोग बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं और वहाँ रहने की जगह बना रहे हैं, ग्रेट, लाइक दैट प्रमोट्स टूरिज्म, दैट्स गुड। Yeah. लेकिन एट द सेम टाइम लोग तो ख़त्म नहीं हो रहे, वी हैव एक शहरों में ही ज़्यादा रह रहे हैं ना, कितने लोग हैं जाने वाले, कुछ वहाँ रह लेंगे कुछ वहाँ, लाइक इट्स everyone wins। तो आई थिंक वो थोड़ी सी चीज़ है। सम पीपल हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने, कि यहाँ से लोग जाते हैं रुकते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, वो इतने फ्रेंडली नहीं होते, दे एक्सपेक्ट कि हमें वो होटल्स वाला ही माहौल, क्योंकि आप किसी के घर में रह रहे हो ना, तो इट्स तो गलत। घर वाला ही माहौल होगा फिर तो, जैसे आप अपने घर में रहते हो, आपको कोई 5 स्टार ट्रीटमेंट तो मिलती नहीं है घर पे। वो अपने तरीके से, वो खुद नीचे बैठ के खाना खाते हैं, आप उनके साथ बैठ के खा लो। बिल्कुल। तो वो कुछ लोगों ने अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई डोंट वांट टू मिसकोट, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि दे बैंड फिर कि नहीं हमने नहीं रखना, लाइक दे स्टॉप्ड ऑफरिंग दिस सर्विस, बिकॉज ऑब्वियसली आप उनकी प्राइवेसी और जो चीज़ें वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, अगर वो हो रही हैं तो दे वॉन्ट, लेकिन अगेन देयर इज अ डेकोरम टू ट्रैवल ऑल्सो, कांट जस्ट ऑल्सो मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात होती है, अब देखिए आप बाहर मुल्क मतलब किसी जगह पे जाते हो, डू यू नॉट रिस्पेक्ट देयर कल्चर, रियली। है ना? कितनी खुशी से हम कहते हैं नहीं यार इनको ये चीज़ें नहीं पसंद, इस तरह से नहीं है, ये लोग इस तरह, लाइक इंस्टाग्राम पे दिस दिस होल थिंग जहाँ पे रील्स डेडिकेट करते हैं अबाउट कि किस तरह देर लाइक कि फ्रेंच, और देर लाइक कि हमारा पिज़्ज़ा आपने इस तरह खाना है, और लाइक हमारा पास्ता आपने इस तरह खाना है, फिर पुटिंग केचप ऑन इट, Yeah. के लिए इट्स अ बिग डील कि व्हाट, दिस इज़ अ डिज़ास्टर। तो इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर इन जगहों के, अभी तो मैंने एक एग्जांपल दी है, तो आप अपने से ही शुरू करो ना, अपनी जगहों से शुरू करो, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ भी मैंने नोट की है कि 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो ये कि हु वांट्स द लोकल एक्सपीरियंस, एंड देयर इज़ वन पीपल हु आर लाइक वेरी मॉडर्नाइज्ड, सो उनका होता है हम एक होटल में रुके बट वी स्टिल एक्सप्लोर प्लेसेस, बट तो फिर Opposed to each their own. एग्जैक्टली that. तो मैं उस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहूँगी। इट जस्ट हिट मी कि बहुत, आई नो पीपल, आई नो फ्रेंड्स हु आर लाइक दैट,
मैं बहुत डिफरेंट हूँ। आई एम वेरी लाइक दैट कि मुझे होता है कि इस तरह लोकल फ्लेवर हो, लोकल एक्सपीरियंस हो। इवन द प्लेसेस आई विश टू ट्रैवल आर मोर स्पिरिचुअल इन दैट सेंस, और थोड़ा सा क्लोज टू नेचर, एंड देयर लाइक कहीं कीचड़ में, बारिश में हो, लाइक मैं उस तरह अरे का ऑब्वियसली हर एक की वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट। डेफिनेटली आई थिंक वही है ना कि वही लोग फिर जाके जब रहते हैं उन एनवायरनमेंट्स में जहाँ दे हैव टू बी आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, तो फिर दे बिकम डिसरिस्पेक्टफुल वियर्स तरह। तो हाँ, इंसान को पता होना चाहिए व्हाट यू आर लुकिंग फॉर या एंड चूज दैट। इफ व्हेन यू हैव चोजन दैट तो फिर भी रिस्पेक्ट। ऑल्सो व्हेन यू ट्रैवल, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं बिकॉज दे वांट टू रिलैक्स। उनके लिए का होता है क्योंकि गेटिंग अवे फ्रॉम वर्क फॉर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बिजनेस रिलेटेड जो भी आपका है, तो फिर भी समझ आती है व्हेन देयर लाइक कि अब इधर भी बैठ के यही करना। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वो चीज़ें भी, बट इफ यू आर गोइंग कि प्रॉपर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए ये वो, देन डेफिनेटली दिस इज आउट आई थिंक एक्सप्लोरिंग इज डिफरेंट। तो अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो फिर थोड़ा सा वो बिल्कुल फर्क निकल जाता है। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल यू गेट अवे वाली सिचुएशन वो फर्क होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए ट्रैवल करते हैं कि उन्होंने रिलैक्स करना है। कुछ लोग होते हैं रिलैक्स नहीं करना, कुछ बिल्कुल उल्टा होता है। Yes. तो दे वांट टू जस्ट गो वाइल्ड विद इट कि हाँ हमने हर चीज़ रॉ एक्सपीरियंस करनी है। तो हाँ, बहुत सारे तरह से लोग यू कैन एक्सपीरियंस Yeah, that's true. That's true. Now I just want to move towards your social media presence, क्योंकि उसके बारे में मैं, because you are someone who actively talks about your travels, you showcase it, especially to the mountains. Um, uh, I don't know. अभी बातों से तो लग रहा है that you might have a story or something, but like maybe like being in the presence of those mountains, nature, maybe something about your perspective towards life, आपको कोई इवॉल्व हुआ, बिकॉज आई नो पीपल गो देयर और उनके लिए होता है कि ये Definitely, I think नहीं भी if you can not put it in words, फिर भी it definitely makes a difference. या Change of sight and seeing things on such a huge scale and finding बिल्कुल yourself very tiny, that makes a lot of difference. मेरे लिए personally जब 2022 में भी मैं गई थी, it was a month long trip. उससे पहले I took a gap year and I wasn't doing well physically, mentally. ओके तो मेरे लिए तो वो बहुत तरह से हेल्पफुल। इट वाज आई वुड से अल्लाह ताला बेहतर जानते कि क्या चीज़ें होती हैं फ्यूचर व्हाट इट होल्ड्स, लेकिन मुझे लगता है कि इफ़ दैट हैड नॉट हैपन तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट एंड नॉट इन अ गुड वे रियली। तो माउंटेन्स एंड दैट क्वाइट और सो आई वांट टू एक्सप्लोर, तो मुझे मसला नहीं होता लाइक वो हेक्टिक रूटीन और इस तरह से भी। तो मुझे वो हर चीज़ में इट वाज फुलफिलिंग एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज एम्प्टी। जब तक मैं जाती नहीं हूँ, जब तक मैं पहाड़ों में नहीं बैठ लेती, जब तक मैं वो चीज़ सोक इन नहीं कर लेती एंड देन आई एम गुड फॉर अ ईयर। तो I need that and I feel like it has helped my mental health बहुत ज़्यादा। Plus when you're there, the way we do this, हम मोटरसाइकिल्स पे जाते हैं, this is very like you, the most in touch you can be with the बिल्कुल nature. बिल्कुल बिल्कुल There is literally no wall in between. तो फिर ना you feel small, but sometimes that's not a bad thing. So if you're worried about things which like everything seems bigger than you, सब कुछ आपके ऊपर गिरता हुआ लग रहा है, तो just I would suggest just go sit on a hill और you'll see कि दुनिया इतनी बड़ी है and you see your problems और फिर आप कहते हो कि, and it's not to say कि problems वो बड़े होते नहीं, हाँ it just gives you that capacity to deal with them. या And in my experience that has it's what's keeping me alive basically. It won't be an exaggeration. आई थिंक यू हैव अ रिलेशनशिप विद इट, बिकॉज कोई चीज़ आपको खींच ले आती है उसकी तरफ दोबारा, व्हिच इज़ व्हाई यू गो बैक टू इट, Yes. राइट? आई थिंक शायद लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, बट वो भी इट्स नॉट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फील लाइक लोग जो जाते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो मरी बूरबन जैसी जगह तक जाएं, उनको नहीं समझ आते कि दे एक्चुअली नीड इट, व्हिच इज़ व्हाई दे गो। ये नहीं कि वो छुट्टियां हैं तो हम जा रहे हैं,
but this is something they actually wait for, that we go there and then we relax for a few days. Or I know people who go for like months even, जिनके पास होती है ये capacity to do so, and it like rejuvenates them to a point कि वो वापस आके they're fine again. Just for बेशक वो temporary हो, but as humans हमारे लिए होता है कि ये भी enough है. We're made for this, na? Naturally, we're not made for this routine. तो we're fighting it, हाँ. We need, like, वो need of the hour वाली बात है, जो चाहिए होता है. अब जिसको phone use करना नहीं भी पसंद था, करना पड़ रहा है ना. You have to look at your emails. There is no other way. एक time होता था when it was so easy कि internet बंद कर दो and life is okay. You can't do that anymore. You can't do that अब. When I was working an office job, तो मैं सोचती थी कि is there any way to just get rid of WhatsApp? बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं हो सकता. It's your work now, your survival depends on it. लेकिन naturally we're not made for this. No. So you need that. And it can be anything. कुछ लोगों के लिए traveling is not the way, कुछ और होता होगा. But you need your thing. कुछ लोग pottery करते हैं, that keeps you grounded. लेकिन जो भी ये चीज़ें होती हैं, they have some connection to nature. कुछ ऐसा होता है जो हमारी original जो rules है ना, it takes you there. तभी it's calming and it's like reassuring कि हाँ, you're gonna be fine. Around COVID time, I think it was getting hard for me at one point. So a friend of mine was like, I told her कि मैं बचपन में ना, I would draw a lot or like color a lot and paint a lot. मैं अपने parents के लिए कुछ बना रही होती थी. I have so many things. जो भी I went back home ईद पे और मैंने निकाली ना, I was like, ये सब मैंने बनाया. So like when so she suggested, why don't you paint? And I was like, मुझे नहीं आती painting. You were thinking कि मैं बहुत कोई Picasso level or something. I'm not like. So it's like, नहीं यार, कुछ भी बला कर दो, अब तो abstract painting होती है. Not to undermine an artist's ability, of course not. I'm not doing that. But मैं अपने सिर्फ लिहाज से बात कर रही हूँ. And I was like, चलो ठीक है. And the first thing I did was nature. मैंने abstract था वो, लेकिन it was like a jungle, I remember. Because I love वो जो, this is giving very Twilight vibes. But like, you know, those forests and there's like, Trees and yeah, exactly, foggy, exact. I love it. Just like so soothing. yeah, it is. And I did something like that. I've still kept it because it's a constant reminder for me. Okay, this is something that helped me, and I painted so much after that. मैंने बहुत ज़्यादा, because it would help me. Like मैं बैठी होती थी कमरे में, I would be so agitated and I would just reach for it and paint. तो usually होता था earth or like mostly मैंने notice किया कि I would just paint this. अगर 2 rabbits हैं तो वो बैठे हुए किसी hill पे. Always something connected with nature, right? Yeah. So I think हर एक का relationship होता है, however they can carve it. हाँ, definitely whatever you're making out of it. लेकिन वही है कि ये सारी चीज़ें वैसी हैं कि so this might take the conversation किसी और there, but Yeah. I think आपकी body भी, if you're doing something which is natural, जी. like if you're painting, you don't have to follow an instruction. Yes. So that helps. If you're dancing, तो you're following your body's direction कि जहाँ जाना चाहिए. बिल्कुल. तो वो all of this is connected किसी ना किसी तरह से, वही ना, your natural self. So it helps you. Even if you're drawing literally, like आप paint करें and then you end up making a robot, it's still nature because you naturally, like, you were drawn to it. Yeah. So I think इसीलिए traveling also helps because वो आप, you just set yourself free and you're relaxed. I also imagine you like, you know, going to the mountains and everything. आपने कहा कि कोई walls नहीं होती, so just like the wind rushing Yeah. past you. And I think that first wave जो लगता है ना झोंका, it's like, I think that just like ऐसा recharges. जब आगे जब थोड़ा ठंडा होना शुरू कर, तब you're like, हाँ, Right? time home. वो बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद वो obviously चिलास वगैरह की तरफ गर्मी भी होती है. अच्छा. लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा जब शहर से निकलते हैं ना, आपको फील हो जाता है कि ठंडा भी लगना शुरू हो जाता है, आपको ग्रीन भी लगना शुरू हो जाता है. तो इट जस्ट एवरीथिंग मेरे दिमाग में तो पूरा शिफ्ट हो जाता है. आई फील लाइक कि एवरीथिंग एल्स शट्स डाउन एंड वो इट फील्स right where I'm supposed to be. It feels like that. Do you mostly like travel with your brother? Yes.
Did you like it? Like, I Yes. feel like you have a relationship. एक ही तो आपने भाई मतलब दिया, लेकिन आपका आई थिंक एक के साथ या दोनों के साथ? हम दोनों तीनों भी गए थे. या वी डिड अ ट्रिप टू केल. तो वहाँ तक काफ़ी लंबा था वो भी कश्मीर. लेकिन मोस्टली दूसरे छोटे वाले भाई के साथ, बिकॉज वो ही इज़ मोर इनटू मोटरसाइकिल्स एंड ही स्टार्टेड डूइंग दिस फर्स्ट. ही वाज द फर्स्ट वन ओके. to actually jump into the whole traveling scenario. हमारे लिए वो आइडिया नया था, even for my parents, कि you're just doing something because you want to. बिल्कुल. That is a सारी little consideration. लेकिन मतलब क्योंकि हमारा गोल वो होता है ना, is it making money, is it what is it bringing to the table, like क्या है. तो and he went out of his way, he did things. कम से कम पैसे लगा के वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर लेता था. ही वोंट बाय क्लोथ्स, ही वोंट ईट फैंसी फूड. ही जस्ट सर्वाइवल मोड पे ना उसने पूरा महीना तक उन्होंने प्रायोरिटाइज कर लिया ना कि मेरी ये Yes. प्रायोरिटी है. तो इसलिए whenever I go with him, I get to learn a lot also. तो और फिर he is very like I remember वो मुझे कभी कहीं से पिक भी करते थे ना बाइक पे, when he started, like जब मैंने सीख ली बाइक चलाना और अभी मैं थोड़ी रोड सेंस मुझे आ रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें समझ रही हूँ. तो मैं अनॉय भी हो जाती थी स्टार्ट में कि वो आगे बैठा हुआ है, कभी मुझे पिक किया उसने तो वो कह रहा है क्या कर रही हो, गाने सुन रही हो, देख नहीं रही मुझे मैं कैसे चला रहा हूँ, देखो मुझे मैं कैसे चला. तो he constantly kept reminding me ke like learn, there is more to know. It's not about how to like kick करके gear कैसे लगाने, ही नहीं है ना मोटरसाइकिल चलाना. I still don't know everything. I know कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है. लेकिन वो मुझे बता रहा होता था, देखो अभी देखा है इसने मुझे कैसे कट किया, like did you know how I avoided it. तो इसलिए constantly I'm learning and that's very like मेरे लिए वो golden opportunity होती है to spend time with him. And when we're in the mountains, क्योंकि he has seen everything पहले से, he knows how to navigate, लोगों से कैसे बात करनी है, कहाँ पे कैसे, like मैं जो चीज़ें नहीं सोच रही होती, he thinks about those and I'm reminded कि अच्छा. Yeah, it's an exchange of ideas, it's sorts, right? So it's always helpful to go with him. It's about security and all, क्योंकि मैं छोटी थी तब भी तो अकेले जाने वाला कॉन्सेप्ट वैसे ही मुश्किल था. लेकिन अब I don't even feel like going by myself. Like I want that, it fits together. तो अच्छा लगता है. अच्छा, एक परसेप्शन भी एक बिल्ड हो गई है कि ओके जो इवन तो आप जिस तरह योर ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, योर ट्रैवल्स एंड योर रिलेशनशिप विद राइडिंग योर बाइक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो टिपिकली लोग चलाते हैं बाइक, लाइक जो हाँ जी. जिनको हम सड़कों पे रोज़ देखते जी. हैं, करेक्ट. हाँ जी. तो मैंने ये बहुत चीज़ों लोगों की नोट की हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस लाइक whoever is driving, like my father or brother, एक या फिर कोई फैमिली में कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो मैंने एक बहुत चीज़ नोटिस की. इट्स वेरी टिपिकल हाउ वी सी दोज हु राइड बाइक्स कि इसको तो कि बाइक वाला फिर आगे वो इससे तो दूर रहना है, बाइक वाला आ गया, फिर बाइक वाला आ गया. इट्स मोस्टली मैन, सो इसलिए मैंने बाइक वाला बोला. लेकिन हाँ ये होता है. एंड और आपने जो बोला इट वाज टोटली डिफरेंट, जिस तरह योर ब्रदर सेड कि हमने देखा कि इसने कैसे किया और मैंने किस तरह पे आपको बचाया. सो Yeah. इतना डिफरेंट है फ्रॉम द वे यू सी इट एज समवन हु इज राइडिंग बाइक. हाउ अब गाड़ी वाले हम देख रहे होते हैं कि इनको तो आती ही नहीं है, देखो कितनी जल्दी है इनको, इनसे दूर रहना है, राइट? बिल्कुल. करते भी हैं लोग, ऑब्वियसली मसला होता भी है. यंग किड्स मोस्टली देर वेरी लाइक वो, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाना ही ना हैज़ अ रश. ओके. इट क्रिएट्स आपके दिमाग में कुछ, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू कंपेयर इट विद, लेकिन देयर इज समथिंग जो कि ना आपको लगता है, आई एम इन कंट्रोल एंड आई एम जस्ट, आई कैन स्पीड एंड आई कैन. आई थिंक देयर इज अ रिलीज ऑफ अ सर्टेन हार्मोन, Yeah. समथिंग जिसकी वजह से आप ऐसे हो. Yeah. Yeah. तो मतलब I feel like वो that also to contain yourself, it is a difficult task. आपको पता है, हाँ, you have your like the power is in your hand and the road is clear और आपको लग रहा है कि मैं zigzag जा सकता हूँ. जाना चाहिए या नहीं वाला ज़्यादातर लोग नहीं सोचते. तो I do understand कि हाँ, people do that, they don't wear helmets, they don't. मुझे personally बड़ा मसला है कि लोग शीशा नहीं लगाते. तो वो अच्छा. गर्दन घुमा घुमा के देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा. You don't always
people have their entire family sitting on the motorcycle, they don't have mirrors. बच्चे होते हैं मैं खुद गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं डर रही होती हूँ कि इसने ऐसे ही टर्न ले लिया. यू कांट लुक बैक ना हर वक्त. हर वक्त कौन नहीं आपको पता था देयर इज अ रीजन व्हाई दे हैव पुट दोस थिंग्स अप देयर, लाइक कुछ ऐसे तो नहीं ना लगाते. ट्रू तो हाँ आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन बट ऑल्सो आई रिमेंबर आई वाज विद अ फ्रेंड, शी वाज ड्राइविंग एंड रास्ते में एकदम से कहती है ये मोटरसाइकिल वाले ना मेरा बस चली हुई इन सबको खत्म ही कर दूँ यहाँ से, हो ही ना अलाउ ही ना. एंड देन शी रियलाइज्ड yeah देन शी रियलाइज्ड कि मैं साथ बैठी हुई. awkward I mean, I didn't mean it that way. I was like, I know you did. So, जब वो frustration आती है, I feel like दोनों तरफ से people need to learn how to be in control, yeah respect everyone on the road, but also गाड़ी वाले लोग भी एक ना हर एक के लिए ये है. जैसे गाड़ियों में भी कोई कुछ मसला होता है तो एक खातून होगी कोई, एक है ना perception, या बाइक भी चला रहे हो तो definitely बाइक वाले की गलती होगी. तो आई फील लाइक whoever you see as the weaker option तो आप उस पर डाल देते हो. yes रिक्शा है तो रिक्शा वाले पर डाल दोगे, रिक्शा वाले अंधे होके चलाते हैं, हर कोई नहीं चला सकता ना, तो गिव दैट मार्जिन उसको. हो सकता है वो ठीक ही चला रहा हो. तो yes आई फील लाइक वो है हर तरफ से. एवरीवन ऑन द रोड इज जस्ट लाइक हु टू ब्लेम, देयर मस्ट बी एनीवन एल्स, समवन एल्स. आई थिंक हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर लोगों को रोड के रोड सेंस ज़र- नहीं है. नहीं है, उनको नहीं पता कि इधर चलानी है, इधर इतनी चलानी है, इसको जगह देनी है, ये पहली प्रेफरेंस है. ये व्हीकल होता है ना ऐसे, कोई चीज़ों के बारे में नहीं पता, इसलिए आपका बेशक शायद अ पार्ट ऑफ मी इज स्केयर टू लर्न ये अभी तक इस बिकॉज मुझे है कि मैं तो अपने आप को सिखा दूंगी, आई विल इक्विप माई सेल्फ विद ऑल ऑफ द नॉलेज, बट मैं जब सड़क पे जाऊंगी बहुत सारे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा जिनको ये नहीं पता हो. अब मैं हर एक को करेक्ट तो नहीं कर सकती. डू यू अंडरस्टैंड? Yeah. So I think a lot of fear comes from that, even though I'm trying to slowly erase it. Because I see so many women around me who know how to drive. It's a basic skill, and Yeah. they're like, my friends have this thing where like वो sarcasm use करके they push me कि तुम सीखो and this is a skill आनी चाहिए. चाहे चलो ठीक है खाना बनाना ये वो सब ठीक है, ये सारी चीज़ें पता है, but learn how to drive at least कि पता Very क्योंकि तो लाइक कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. यू शुड बी अवेयर, राइट? मैं छोटी थी तो मेरे दिमाग में बस एक आती थी थॉट, व्हाई डू आई हैव टू लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, व्हाट इफ आई गेट किडनैप्ड एंड देन दे ओनली हैव लाइक मोटरसाइकिल खड़ी हो एंड आई एम फ्री टू गो एंड आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव इट. तो मैं क्या, क्योंकि वो एक बचपन का आपका दिमाग डिफरेंट होता है. तो मैं वर्स्ट केस मेरा ये होता था, तो मेरे दिमाग में एक वो इमेज भी है कि वो खेतों में कोई कमरा है और मैं वहाँ पे हूँ और मुझे बाइक नज़र आ रही है, मैं कह रही हूँ वॉशिंग मुझे चलानी नहीं आती, तो अगर चलानी आती होगी फिर तो मैं भाग दूँगी. तो इट रिप्रेजेंट्स बहुत तरीक़ों से. इवन व्हेन यू टॉक अबाउट कुकिंग फूड या इस तरह की चीज़ें, यू आर इक्विप्ड, लाइक ये तो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, सबको आनी चाहिए. लेकिन हाउ आर यू गोना गेट योर ग्रोसरीज? यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू डिपेंड ऑन समवन. तो अभी मैं इंस्टाग्राम पे ना कमेंट्स आ रहे होते हैं, पीपल आर, दिस इज सो सैड हाउ women मोस्टली मैं देख रही हूँ कि दे आर वेरी स्केर्ड. अब उन्होंने किसी ने लिखा हुआ था कि बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू men have stopped being men. And I was like, okay, let's hear her out. And I tried to understand. अब उसमें उनका मतलब ये था कि अगर हम सब कुछ खुद करने लग जाएंगे, हम खुद तुम बात क्या करेंगे? हाँ, तो अब वहाँ पे आके ना थोड़ा कंसर्निंग है. So are you saying you don't want to be liberated? That is a problem. अब the people who want to be liberated, you are pushing them back. अब if you don't want to be, what is the reason? आप समझ रही हैं कि वो लेजी हो जाएंगे. You're not taking their job जो उन्हें करना चाहिए. If they're supposed to do it, they're supposed to do it. Let them. It's about what if they're not available. वो बात भी तो है ना. It doesn't always have to be this way कि अगर मुझे आता है just because I know how to do it, I am supposed to do it. It's just that the sense of security कि I know how to do it. अगला बंदा भी relaxed रहे, हाँ she's got it, it's fine. Like I don't have to rush back home office से just because my son is daughter is sick. गाड़ी है घर को ले जाए.
100 चीजें हैं ना, Yeah, तो यू आर हेल्पिंग ईच अदर। correct. तो वो मुझे देख के हुआ कि फिर मैं सोचती हूँ कि अभी ना मुझे नज़र आ रहा होता है इस तरह के लोगों में मार्जिन ऑफ चेंज एंड लाइक एक्सेप्टेंस उस चीज़ की, लेकिन कॉन्वर्सेशंस आर रिक्वायर्ड। So I know for a fact if I get to sit with that woman Mm. and we talk for a couple of hours and I let her speak, make her feel seen and safe, she will understand and we will be on the same page. क्योंकि है हम same page पे, but her concerns are stemming from some other place. That is correct. So conversations are important to see. I think yes, you're right. बहुत सारी for most people मैं कहूँगी, not trying to target just women, but अगर हम औरत की बात कर ही रहे हैं चलो इस केस में, there's always this fear कि for example when it's like a husband wife का अगर situation है तो औरत अक्सर feel करती है that if I am not going to do these certain things and my husband is not or my significant other is not going to want me that उसको मैं, do you understand the psychology behind it? I don't know where it stems from. हर एक का different होते हैं. किसी ने अपने घर में growing up देखा होता है, किसी ने किसी के शौहर ने उसको इस तरह manipulate किया होता है कि उसको होता है कि ये सच है. I don't know any other truth. यही सच है. So बहुत सारी reasons होती है जिसकी वजह से आपको एक fear होता है. So it comes out of fear, but we have to see it as a concern, and it's very dangerous that a person is thinking in this manner. कि because it saddens me to know कि आपको अपनी worth भी पता. It should not be limited to what someone else wants from you or out of you. अगर आपको एक balanced चाहिए relationship, what if there are days where वो ज़्यादा कर सकते हो और आप कम कर सकती हो, आप दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो. किसी दिन वो नहीं ज़्यादा कर पा रहा, then you can come and handle, right? So उस तरह से देखना है, सिर्फ नज़रिया चेंज करने की बात है और कुछ नहीं है. बट ये fears होते हैं और हम रजिस्टर नहीं कर पाते. हम इसलिए बात करें क्योंकि हमने रजिस्टर कर खुद में भी हम करते हैं. I'm sure मेरे माइंड में भी बहुत सारे fears हैं, आपके भी होंगे. So it's all about registering and how you process them. In conversations like आप हर एक से खुद जाके बात नहीं कर सकते. I feel like these things help a lot. People are forced to hear other perspectives. That's good. पर ये जो चीज़ है कि लोग अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो वो वाली बात ना मैंने तो बहुत खुद मुझे लगता है कि I know where it comes from. People are always saying whenever someone gets married कि ज़रूरत बनो उसकी ज़रूरत. Do things for him which he can do, लेकिन उसकी आदत खत्म हो जाए. He was my again. That is That's very not toxic. I'm sorry, but ये बहुत unhealthy है. But ये ज़रूरत बनना है. There are other ways you can become ज़रूरत. and you know this will backfire if you do this. Always does. It's suffocating for you. आपका दिल नहीं करेगा कभी. आप तो उससे निकल नहीं सकते. After a couple of years, you're like मैंने ये सब चीज़ें नहीं करनी. उसको तो गुस्सा फिर क्योंकि वो comfortable हो गया. you did that like मैंने देखा है लोगों को खुद कर रहे होते हैं काम वो अपने and women like by choice. Yeah. क्योंकि अब हर एक is coming from a certain place ना. चीज़ें आपने अपने पेरेंट्स से सुनी होती हैं, अपनी अम्मियों से सुनी होती हैं, देखी होती हैं, तो वो उनको उन चीज़ों से हटाती है कि नहीं I'll do it for you. And then when they get tired they don't get that margin फिर कि हाँ अब फिर वही हो गया. अब what I was talking about पहले that comment जी. कि हाँ मतलब वो मर्द नहीं रहते फिर तुम ये करते हो रही है वो. तो it's not about that ना. If someone is doing things just because they have to then that's a problem. वैसे ही they should do things because they know this is their responsibility. बिल्कुल. They should stop you from like crossing that boundary कि हाँ नहीं I've got this. तुम just because आपको आ गया है करना और आपको लग रहा है अगला बंदा अब आपसे ही करवाता रहेगा वो चीज़ें, तो फिर तो in itself उस बंदे का मसला है ना. It's not about you. अगर वो है ही नहीं पिक्चर में तो फिर how will you take care of yourself? That is the concern. और पता है हर घर की अपनी कहानी होती है. देयर माइट बी लाइक अगर वो कमेंट किसी ने लिख दिया कन्वीनियंटली, यू माइट बी समवन यू नो फॉर समवन एल्स who looks up to you because she's a widow, जैसे आपने for instance,
एंड शी लुक्स अप टू इन अ मैनर कि ओ अच्छा इसको भी आती है, मैं भी सीख लेती हूँ। इवन तो मेरी उम्र ऐसे इनके घर वाले उनको 10 बातें, लेकिन कल को वो अपने बच्चों के लिए कन्वीनियंस बन जाती। तो हर कंडीशन को आपने देखना होता है। हर घर की ये कहानी नहीं होती कि मियाँ बीवी होते हाँ, हैं और फैमिली होती है, हर घर बिल्कुल में ऐसा सिनेरियो नहीं होता। ऐसे ही है। इट्स बस ये बातें करते करते कभी कभी मैं सोचती हूँ कि देखा जाए तो ये इतनी बड़ी बातें हैं नहीं, मतलब अगर हम देखें तो इट्स मोबिलिटी, इट्स जस्ट मोबिलिटी। आप कहीं पे भी कन्फाइंड है, कहीं पे भी है जहाँ पे आपको किसी की का इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी मेरे भाई और अब्बू उनका ये भी पर्सपेक्टिव था कि क्यों कोई और आए और एक बंदा आ रहा है यूनिवर्सिटी, आपका भाई पढ़ रहा है सारा दिन, वो भी ख्वार हो रहा है, ही वुड हैव टू लीव अर्ली टू पिक यू अप। यस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स ग्रेट। बहुत और तरीके होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत तरह से मेरी ये भी तो जिम्मेदारी वो निभाते हैं ना कि दे गाइड मी, दे टेल मी हाउ टू डू दीज थिंग्स। वो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। फिर यू फ्रॉम योर फादर ही पासेस इट डाउन टू द सन, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस बैगेज के बहन है, इसका करना है, इसको एक मिनट अकेला नहीं छोड़ना। एंड देन यू लाइक पुश इट टुवर्ड्स द हस्बैंड, जो कि कभी भी उतने उस तरह से नहीं कर सकेगा जिस तरह एक बाप करता है। यस। then the girl ends up feeling like displaced and she's like ना मैं क्या, मतलब मैं हूँ क्या, मेरा घर कहाँ है। and I have heard friends say this, unfortunately they get married and a lot of them end up saying the same sentence कि I don't have a house, I don't have a home। तो it's like वो किसी और का था, ये किसी और का है। and it's not always financial thing। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। आई थिंक इस पे पूरी एक डिस्कशन हो सकती है। सो आई वांट टू टॉक अबाउट योर कोलैबोरेशन विद जनरेशन, व्हिच इज़ हाउ आई केम अक्रॉस योर अकाउंट। क्योंकि मैं जानना चाह रही थी, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड how and why it was very important for you to utilize this brand to talk about women claiming public spaces, because yeah, this is a very unique way to utilize एक brand की presence, and इस तरह की collaborations मुझे तभी fruitful लगती हैं जब वो एक इस तरह का message दे रही हो जो inclusive हो, not catering to a certain audience. So could you share that? Yeah, sure. So it wasn't about fashion or clothes or any of that. Um, it was about the ease. तो जब we were talking about it पहले भी कि whenever एक बहुत सालों से जब से मैंने चलाना शुरू किया मोटरसाइकिल, तो मैं देख रही होती हूँ लोगों को, any female who is riding a motorcycle is wearing jeans या trousers या Yes. so that's your first fight to fight घर पे. You shouldn't have to. So that was my perspective. कि you can ride in traditional clothes. I also want to say साथ कि it's not always safe, क्योंकि आपको देखना पड़ता है फिर उस चीज़ को, आपने दुपट्टा सही से संभाला और यहाँ भी कपड़े बिखरे हुए ना हो। बट देन अगेन हाउ मेनी मैन वी सी ऑन रोड मोटरसाइकिल चलाते हुए जो हर बारिश मेज में होते हैं। the only difference is you might have to wear a dupatta. You can take care of that. You can learn how to. लेकिन जो पहली चीज़ आती है ना, you don't have to become a tomboy to ride a motorcycle. I have seen people, बहुत लोग चलाते थे पहले भी, मोहल्लों में छोटे छोटे एरियाज में लोग चलाते थे। लेकिन फिर क्या होता था कि I also saw those girls hanging out दुकानों के बाहर लड़कों के साथ ही, लड़कों की तरह ही। तो they have to, it's all of that or none of it. So that was a problem. I saw that as a very concerning thing कि हर कोई वो बाय चॉइस नहीं कर रहा। Also, you did not want to be boxed into that category, probably. कि you wanted कि मुझे उस तरह associate ना कीजिए, because it's not something कि it's not how I identify myself as. Yeah, it's मेरे लिए ये था कि मेरी पहचान जो सोसाइटी में, जो दोस्तों में, फैमिली में जो बन रही थी वो बन चुकी थी। लाइक वो मेरे लिए एक नई चीज़ नहीं थी कि आई एम बीइंग सीन अ सर्टेन वे और देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा। मेरे लिए बस ये था कि आई सॉ पीपल हु लाइक, ये एक चीज़ मुझे हमेशा पिंच करती थी कि बिकॉज आई राइड अ मोटरसाइकिल, तो
मेरे पेरेंट्स अक्सर लोग कहते हैं कि तीसरा बेटा ही है आपका, एंड दैट्स नॉट ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट. It is not a compliment. तो people, you can't even convince yourself sometimes कि it's a compliment. It's not. एक तो ये कि आप तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो समझ नहीं आता. Yeah. So वो चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर करती थी. राइडिंग इन शलवार कमीज इज लाइक मेरे लिए वो फिर एक और चीज़ थी कि जब सो व्हेन आई वाज डूइंग माय थीसिस ग्रेड स्कूल का, जी. तो आई डिज़ाइन अ मोटरसाइकिल रिलेटेड एप्लीकेशन. लाइक इट वाज अ ट्रेनिंग ऐप बेसिकली फॉर फीमेल्स के, विच इज़ नॉट इन रनिंग राइट नाउ, लेकिन डिज़ाइन वगैरह हो गया था. तो उस टाइम पे ना आई रियली हैड टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दिस. तो उसमें मेरा कंसर्न बहुत क्लियर हो गया था कि मेरी टारगेट ऑडियंस, हु एम आई ट्राइंग टू फोकस ऑन, द वंस हु डोंट हैव अ वॉइस, द वंस हु आर लाइक ट्रैवलिंग बहुत दूर की बात है, दे नीड दिस फॉर देयर सर्वाइवल. तो जिन लोगों को ये चाहिए सर्वाइवल के लिए, Yes. जो हमारा निचला तबका है, उनके लिए एक और मुश्किल नहीं क्रिएट कर सकते ना कि यू हैव टू वेयर वेस्टर्न टू बी इंडिपेंडेंट. देन अगेन यूर फीडिंग वही आइडियोलॉजी जो ड्रामों में दिखा रहे होते हैं कि अगर कोई बहुत मॉडर्न है या बदतमीज़ है तो शी मस्ट बी वेयरिंग वेस्टर्न. Yeah. अगर कोई अच्छी लड़की है तो वो शलवार कमीज पहन रही है, तो अच्छी लड़की मोटरसाइकिल चला सकती है. वो बात थी सारी. और आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड इस तरह से भी बहुत कि यू डोंट हैव टू गिव इट मच थॉट. सो आई हैव सीन के पेरेंट्स से पूछते हैं कि नहीं करना. अक्सर ऐसे भी होता है कि इट्स जस्ट यू गिव अप पहले ही, यू डोंट कन्विंस देम. सो जो जो कंसर्न्स उनके होते हैं ना, इफ़ यू हैव अ कॉन्वर्सेशन यू माइट एंड अप गेटिंग योर वे. If they are concerned about your safety, you talk about it. How can you keep yourself safe? Yes. Like just the things we talked about. For अपना रूट देखें, सारी चीज़ें. अगर they are concerned about कि नहीं तुम मोटरसाइकिल चलाते हुए बेपर्दा हो जाओगी, आप उसका जवाब आपके पास होना चाहिए. नहीं, मैं सलवार कमीज में चलाऊंगी, I'll wear a hijab, I'll wear a helmet, like I'll cover myself, I'll wear a mask. हर चीज़ का जवाब, क्योंकि जब वो ओरिजिनली गलत नहीं है ना, तो you will end up on the same page. तो वो मुझे लगता था कि minimize the hurdles. That has been the focus. I think मैं ये बात कहना चाहूँगी कि parents just want you to have a conversation with them. एक एज आती है जब उनको पता चल जाता है ये adults हैं and they crave कि ये हमारे बच्चे हमसे बात करें. जो भी चल रहा है, एक छोटी सी बात है, आज ये हुआ, आज हमारा ये दिन में हुआ, वो अच्छा पता है आज हमने उससे बात की, ये हुआ, they're fine. You can go about your day. When you see them agitated or like angry with you or like आपसे कोई बस कोई मौका नहीं ढूंढ रहे बस कि बहस करनी है बच्चे के साथ, वो इसलिए हो रही थी बिकॉज देयर अ उनको एक दूरी फील हो रही होती है आपसे. Miscommunication, हाँ, connection नहीं होता. कनेक्शन ही नहीं है, तो बस वो क्रेव करते कि आप आओ उनसे बात करो. अगर वो कोई वैलिड शो भी करे कंसर्न, देन जस्ट टेल देम कि ये चीज़ है. हम भागते हैं ना, हमें बस डर आता है. शायद वो आई डोंट नो, इट हैज समथिंग टू डू विद हाउ वी रेज्ड. और अगर मैं 90s के बच्चों की बात करूँ, बेबी है ना, तो आई थिंक इट हैज समथिंग टू डू विद हाउ वी वर रेज्ड. So there's this fear. I've seen it in my brother as well. मुझे भी कई जगहों पे फील होता है, which is why I hesitate talking about certain things. But मैंने कभी-कभी मैं कर भी देती हूँ बात कि आज ये हुआ, ये हुआ. And then it's Surprises, हाँ, it's a surprise कि अच्छा ये reaction नहीं आया जो मैंने सोचा. हाँ, it's a sudden shift in attitude. It's so positive and it's like normal is the right word. Normal हो जाता है and you're like अच्छा, okay. I think वो जब आप बात करते हैं तो I feel like parents also need to feel safe इस चीज़ में ना कि आप कह रहे हो कि I'm an adult, I want to do this. Then you have those conversations जो prove करें कि you actually understand what you're about to do. Yes. तो जब आपको आपके पेरेंट्स को भी ना इन टाइम पता चल जाता है कि हाँ बड़े हो गए हैं, तो जब आप बात नहीं करते तो क्योंकि वो मिसकम्युनिकेशन, दे आल्सो सी यू एज लिटिल चिल्ड्रन ना, तो वो फियर में रहते हैं कॉन्स्टेंटली. अभी तक होता है, मेरे पेरेंट्स परेशान होते हैं चीज़ों को लेके, फिर आई सिट विद देम, आई टॉक टू देम एंड आई टेल देम हाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस पॉसिबल, तो फिर दे काम डाउन
एंड दैट एंजाइटी इज़ वेरी वैलिड एज पेरेंट्स. जी. तो लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी इक्विप्ड, Hmm. you have to know what you're talking about. Yes. It- Do your homework. Yes. Right. हर चीज़ में मुझे तो लगता है कि आप when you're talking to a man about female rights and all of that, do your homework first. Don't Yeah. allow the other person to like वो margin नहीं छोड़ो कि आप stupid sound करो. Yeah. Know enough to speak. If you don't, फिर listen, फिर have that information, then go do your homework. इस चीज़ का तो मुझे जवाब नहीं समझ आया. Yeah. तो we're often just very eager to fight and win. That doesn't help. I think वो फिर एक लेबल भी लग जाता है कि ये तो हमेशा गुस्सा रहती हैं, they're angry feminists, and ये वो just pisses me off. So ironic, but eternally it pisses me off. I don't show it. I saw one of your videos वो औरत मार्च की. Yeah, Risha की. हाँ जी वो आपने देखा उसको गुस्सा आया था? We were just she was I just saw smiling and वो मैं भाई को भी दिखाई रही थी. Like, I love her. She's so calm and everyone was so angry and she was like हम मुझे एक बात पता है हम गुस्सा क्यों ऐसे ये अच्छा था. हाँ, she was very calm throughout. She was fine. That बहुत अच्छा था वो. So it's all about आप किस तरह regulate करते हो अपने emotions पर and how you deal with your absolutely That right. requires work, बहुत मेहनत. लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ती है. Things we're fighting for are very basic. वही इतना frustrating होता है sometimes कि आपको गुस्सा आ जाता है कि यार इतनी लंबी बात क्यों हो रही है इस पर. लेकिन then you just have to calm down. So you आपने जिस तरह बात की about clothes, right? And you talked about कि किस तरह मुझे जैसे feel होता है कि बहुत policing की जाती है, हमें label किया जाता है. I'm just talking about women. It's not the same case with men. मर्द trousers में आए, कच्छों में आए, किस में भी it's no one will look twice. But with women it's like कि अच्छा इससे शलवार कमीज पहनी, इससे दुपट्टा पहना है, इसको लेबल कर देते हैं XYZ. अच्छा इसने जीन्स पहनी, इसने क्रॉप टॉप पहनी है या इसने पूरी लंबी शर्ट पहनी है, XYZ ये ले गेट इट. तो फॉर मी अगर मैं ऐसे बात करूँ कि ईस्टर्न वेयर वाज लाइक अ हिंड्रेंस, क्योंकि मुझे होता था अब शलवार कमीज पहनूँ अब, और यहाँ पे गर्मी कितनी पड़ती है तो मुझे होता था इतनी गर्मी में मैं शलवार कमीज पहनूंगी. एंड फिर उसके ओवर द years it changed probably because I wanted to develop a relationship with हमारा जो culture है it's mainly shown through our clothes. So like the more I started to actively pick what I want to wear, तो तब मुझे अच्छा लगने लग गया. तो अगर मैंने झुमके पहन लिए तो मैं होता है कि ये पहनूँ, मैंने परांदा ले लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगे. It's just एक personal thing and nothing to do with how people were commenting because I've never really cared. So it was I don't have the right word for it, but एक मुझे बहुत shocking तो नहीं कहना चाहिए but refreshing लगा to see you riding your bike with Eastern wear on, not someone जिसने jeans पहनी नहीं है. अगर कुर्ती भी पहनी है तो ठीक है लेकिन jeans पहनी नहीं है क्योंकि वो easy होता है ना, right? एंड ज़्यादातर मैंने लड़कियों को देखा है वो स्कार्फ या तो लिया होता है अगर वो बाइक राइड कर रही होती है, या फिर दुपट्टे स्कार्फ की तरह ले लिया क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है, राइट? सो आपने जैसे बात की कि किस तरह आपके लिए वो सारा रिलेशनशिप था, तो डू यू फील लाइक कि यू वर लाइक pushed unconsciously into like dressing a certain way just because of how people look at you? Like आपको was there a time in your life perhaps जब आपने जीन्स में probably travel किया हो and you were like कि लोगों का देख के रवैया it like changed how you felt about dressing yourself up? On a motorcycle, if you're geared up, if you're wearing a helmet, if you're wearing अगर mountains पे जाए फिर तो हमारा full like jacket वगैरह हर चीज़ होती है, जी पता ही नहीं चलता किसी को कि लड़की है. हाँ, वो सर्दियों में तो बहुत डिफरेंट होता है. और इवन गर्मियों में भी मैं वो पहनती थी, लाइक टी शर्ट भी पहननी है तो ऊपर दूसरी शर्ट पहन लेनी है, बट Okay. खुले में है और इतना फीट ही नहीं होता था. वेयरिंग अ बैग, और आई हैव सीन सो मेनी मेन वेयरिंग स्कार्फ्स गर्दन पे के बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता चलता. तो राइडिंग ऑन लाइक इन शलवार कमीज गेट्स मोर अटेंशन एक्चुअली, थोड़ी सी फर्क होता है. अच्छा If you are wearing very colorful clothes, so definitely दूर से पता चलेगा लड़की जा रही है. If you're not wearing colorful, like शायद मैं अगर इसमें चला रही हूँ इतना फील ना हो ओके कि रंग ऐसे हैं, मर्दों ने भी ले लिए हैं. तो
मुझे सोसाइटल प्रेशर की वजह से ये चीज़ नहीं हुई। आई जस्ट वांटेड टू, आई हैड मेरे एक बिगर कंसर्न्स। जो भी चीज़ आप कर रहे थे, आई फील लाइक इफ यू आर सिटिंग इन अथॉरिटेटिव पोजीशन इन एनी वे, तो यू शुड डू थिंग्स फॉर द पीपल हु डोंट हैव दोज सर्कमस्टांसेस, वॉइसेस। तो वो था। मुझे पर्सनली नहीं फील हुआ कि लोगों की वजह से कोई बात हो। अब अगर हम कपड़ों में बात कर रहे हैं, जो आई हैव बीन hearing a lot about my hair. Why does she have short hair? Like, there has to be something about this. There is nothing about this. So I told you there are labels for every time. इसके छोटे बाल हैं, ये मेकअप नहीं करती, मेकअप करती है. It's a problem when you do it. It's a problem when you do not do it. ऐसी है। We have no way out. तो वो कुछ भी नहीं है उसमें। आप बस it's just that you have to know what you're doing is the right thing बस। अगर वो वही है, उन लोगों के साथ बैठ के मैं कहती हूँ, हाँ बताओ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड देन देयर आई हैव एक्चुअली सीन, जो कि मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि कमेंट्स आते इतने रैश होके, और व्हेन आई टॉक टू देम, रिप्लाई किया या कुछ, सम पीपल एक्चुअली अपोलोजाइज एंड दे आर लाइक हाँ यू आर राइट, ठीक है। और ये बड़ा मुश्किल होता है करना, बड़ी बात है कि वो कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते उसके बाद, तो दैट इज ऑल्सो an indication कि हमें समझ आ गई है। No answer is also an answer, yeah. तो वो ये नहीं होता कभी भी कि मैं आई एम नॉट कॉलिंग देम आउट टू फाइट या कुछ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, आस्किंग क्वेश्चंस। सो दिस इज फॉर एवरीवन, आस्क क्वेश्चंस। Yes. उसमें ही जब आप उनसे, वैसे भी मैंने ये कहीं पढ़ा था कि अगर कोई आपसे कोई ऐसी बात करते हैं ना विच इज़ वेरी ऑफेंसिव एंड यू थिंक दिस इज सो स्टूपिड, कैसे बोला, किस ग्राउंड पे, मेक देम से इट अगेन एंड दे वोंट बी एबल। They won't. एक दफा और बुलवाओगे ना तो उनको होता है कि हाँ ये तो स्टूपिड साउंड, दे अवॉइड दिस। आई हैव बीन डूइंग दैट एंड दैट हैज बीन हेल्पिंग मी अ लॉट। I'm going to try this. दिस हेल्प्स। Yeah. सारी समझ लिया तो समझ- क्या मतलब, अच्छा तो हाँ बाल छोटे हैं मेरे, मैं समझ लिया जोक क्या है इसमें। तो वो दैट्स एम्बैरेसिंग, जोक में से जोक निकल जाता है और उसमें कुछ वॉल्यूम तो है। ये टाइमिंग होती है उसकी। Yeah, तो वो इट्स जस्ट, हाँ वो बहुत अच्छा तरीका है। Yeah, I will try this definitely. You've also talked about solitude. उसका perception जो है ना, हम बहुत various context में लेते हैं. Especially for women, it's taken in multiple contexts. I follow someone. She's based in Dubai. I think she's an Indian, if I'm not wrong. And she talks openly about, wanting to be alone, and she's happy with it for now at least. She's not saying कि मैं हमेशा अकेले रहूँ. But for now, she's content with this life she's living, and people have the most horrible things to say to her. That I don't even want to say it out loud, but it's like कि फ्यूचर के बारे में बात करना, आपको खुद के फ्यूचर का पता नहीं है और आप दूसरों के फ्यूचर पे कमेंट कर रहे हो, एंड वो इतना दिल पे लेती नहीं है। बट आई एम जस्ट लाइक कि लोगों को इतनी लिबर्टी पता नहीं कहाँ से मिल रही है to just throw away comments. You have talked about solitude, like you find peace in it. अब ये solitude में different बात है, जो मैंने context बोला वो that was completely different. You've talked about how you find peace in it, you take out time for yourself. And I feel like it's something that I wish more people talked about. हमें लगता है कि it's a sign of extreme loneliness or depression or sadness, but that's not the case for everyone. हाँ, आप अगर अपने आप को एक्टिवली उस स्पेस में रख रहे हो, एंड आप you're doing all of the things the normal person shouldn't be doing, यहाँ पे आप खा पी नहीं रहे, बस कमरे में बंद, connect नहीं करे, that's different. That's not a solitude, right? In a healthy manner. You talk about it, so like उसके बारे में बताएं, how you perceive it and how you take out time for yourself. I feel like there have been a lot of times in my life जहाँ पे I was surrounded by friends. Yeah. In those settings, at weddings, at anything, I was the most depressed on times पे. तो your being by yourself doesn't represent any of that. कि आप sad ही होगे. Yes. People are very, very miserable and they are just hanging out. Surrounded by people. Correct. So there's, or they can also be alone. तो वो हर एक का different होता है. Also जब you have depression या anxiety, if you're clinically suffering, you have to go about your day.
यू विल मीट पीपल, यू विल हैंग आउट विद देम। आपको ज़िंदगी इतनी लिबर्टी देती ही नहीं है, रुकता ही नहीं है कुछ, आपको अपने सारे काम करने पड़ते हैं। तो डजंट चेंज द फैक्ट दैट यू आर नॉट ओके। लेकिन इन माय एक्सपीरियंस, being by myself and taking time out, that has helped mostly मुझे कि when I sit by myself, I talk to myself, I journal, like लिखा क्या चल रहा है बात की खुद से, it sorts बहुत सारी चीज़ें, because you are the one who's gonna do all of that. Yes. तो there are certain times जहाँ पे talking to somebody helps एक हद तक। उसके बाद जब सोल्यूशन की बारी आती है ना, नो वन कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो आई फील लाइक जितना आप अपने साथ वक्त गुजारते हैं ना, यू मेक स्पेस फॉर अदर पीपल इन योर लाइफ फॉर फ्यूचर। क्योंकि जो वक्त आपने दे दिया अपने आप को, आपने सॉर्ट कर दी चीज़, नाउ यू हैव प्रॉब्ली टुमारो मोर टाइम टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड बी प्रेजेंट। Yes. अगर आप अपने बस डेज फिल कर रहे हैं जस्ट विद द फियर के डोंट वांट टू बी सीन अलोन और यू नो थॉट ऑफ समबडी हु इज लोनली, Yes. तो यू विल बी द मोस्ट अलोन सराउंडेड बाय पीपल। और जो लोग कह रहे होते हैं, जैसे जिनकी आप मिसाल दे रही हैं, ये कमेंट्स आ रहे हैं, आई फील लाइक मुझे लगता है पता नहीं कि फाइंडिंग पीस इन सॉलिट्यूड इज ऑल्सो something people are insecure about. They have not tried this, they have not had the liberty to, and they're bitter about it. Correct. So looking at somebody who's just like sitting in a cafe eating by herself, कुछ कर रही है, तो अंदर से चाहे आपका दिल कर भी रहा हो कि वो ना एक्सपीरियंस लाइक है बेचारी, that's an easier way to be honest. You tell yourself कि नहीं like I have it better, शुक्र है मुझे ऐसा कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप सोचें कि आपने अगर कभी करना चाहा हो, तो जितने बैरियर्स आते हैं उस चीज़ में, मैंने खुद लाइक अब आके नॉर्मल हो गया है। लेकिन मैं पहले जब अकेले बाहर जाती थी तो अम्मी उनसे पूछती थी, मम्मी कहती थी कि मतलब उन्हें समझ नहीं आता था कहाँ किसी से तो मिलने जा रही होगी, कुछ तो होगा, वही तो इवेंट होगा जिस वजह से। अब दे हैव मेड पीस विद इट, दे नो कि अच्छा हाँ ये चीज़ है, Yes. you spend time Yes. by yourself, that's normal. तो उन चीज़ों से लोग familiar नहीं है, and nothing has to be permanent. Correct. If you buy, मतलब मुझे लगता है even for our mothers and for our fathers, बेचारे उनको वक्त मिलता ही नहीं अपने लिए। अपने लिए। Yes. अब वो हमेशा आप अपने पेरेंट्स को आपके बारे में बात करते हुए सुनते हो और फिर आप चिढ़ते हो कि आप हर वक्त मेरे क्यों पूछते हैं, ये क्यों पूछते हो, क्योंकि दे नेवर हैड द टाइम टू सिट विद देमसेल्व्स एंड टॉक अबाउट देमसेल्व्स। तो हमेशा कोई ना कोई चीज़ रही है which was the focus of their life. Now that you are an adult, you are at that age when you're probably getting a job, getting married, so they will ask you all those questions because वो अपने आप से बात ही नहीं करते कभी। Yeah. तो मुझे इससे एक चीज़ याद आई, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मतलब ड्यूरिंग माय अंडरग्रेड, तो मैं जो कनेड में बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, सो लाइक आई वुड जस्ट फाइंड अ स्पेस, जो ठंड बहुत ज़्यादा कूलर एरिया होगा जहाँ पे ज़्यादा बड़ा दरख्त होगा, सो आई वुड जस्ट सिट देयर एंड रीड। एंड आई रिमेंबर देयर वर टू इंस्टेंसेस जहाँ पे दो लोग, एक पर्सन वुड कम अप टू मी एंड बी लाइक, आप ठीक हो? क्योंकि मैं अकेली बैठी हुई हूँ, एट टाइम्स आई वाज समवन हु वाज नॉट इवन रीडिंग। अब मैं वैसे बैठी हुई बिकॉज आई लाइक्ड इट। ऐसा नहीं है कि आई हैड फ्रेंड्स, आई नो, बट आई वाज जस्ट लाइक एक्सक्यूज माई सेल्फ एंड जस्ट बी विद माई सेल्फ जस्ट फॉर सम टाइम। क्या थोड़ी देर की बात है, फिर क्लास हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि पूरा दिन यूनिवर्सिटी में ऐसे ही बैठना है। सो लोगों को बहुत देखो ना, राह गुजरने वाले लोगों को इतना अजीब लगता, मैं हंसती थी कि शायद लोगों को पता नहीं है कि ये नॉर्मल चीज़ है। एंड जब बाद में भी मैंने आके जाके फ्रेंड्स को जब बताया, लाइक जो फ्यूचर में फ्रेंड्स बने एंड एम फिल्म एंड एवरीथिंग, तुम अकेले बैठे रहते, लाइक दोज वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। अजीब लगेगा। मैं ऑल्सो न्यू अ फ्रेंड, वो कभी कभी होता था, वी वुड सिट इन अ ग्रुप, बाद में ग्रुप बन गया एंड वी वुड जस्ट चैट ऑल द टाइम। जब भी फारिग होते थे, समटाइम्स शी वुड एक्सक्यूज हरसेल्फ, वो वॉक करती थी, म्यूजिक सुनती थी, देन शी वुड कम बैक एंड दैट वाज प्रीटी नॉर्मल फॉर अस। हमने कभी उसको नहीं बोला या मॉक किया या सार्कास्टिक हो गया उसके साथ कि वो हाँ फिर चली गई गाने सुनने, कुछ भी आप कह सकते हो, कोई भी कहते हैं- माइंड पास कर सकते हो।
So I think it's all about how one perceives it. और जिस तरह आपने बात की कुछ लोग bitter हो जाते हैं because it hurts less जब आप किसी के ऊपर remark pass कर दो, right? She must be missing out on something. Yeah. He must be missing out on something definitely, इसीलिए ऐसे है. मुझे ऐसे भी लगता है कि अब इतना ज़्यादा हम ओवर स्टिमुलेटेड है ना with the content and what we watch, and every time you open your phone तो कुछ ना कुछ आया होता है. तो उस वक्त में like जब आप अकेले भी होते हैं तो मोस्टली फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह ना. तो मैं अभी सोच रही होती हूँ कि जब मैं अकेले भी होती हूँ कि अपने साथ अब आई फाइंड माई सेल्फ सेइंग दिस वेरी ऑफन कि बात कर लो अपने आप से, टाइम नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि नहीं मिलता. जब Yes. यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग थिंग्स जो कि ज़रूरत है वक्त, Correct. तो वाकई वक्त नहीं मिलता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. शुरू में अब इफ समबडी इज गोना ट्राई दिस, अब शुरू में इट्स गोना बी हॉरिबल. आई जस्ट गोना ब्रेक इट टू यू. Uneasy feel होगा, odd लगेगा, होगा नहीं, क्या पता कभी ना. And you might end up finding something about yourself which you think you'd rather not. Yeah, I think it's all about trying. जब when I first started journaling तो मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या लिखूं. तो I would just write down कि जो मैंने किया है पूरे दिन में. It was so funny when I look back at it. जो मैंने आज ये किया, मैंने आज इससे मिली, I started with making bullet points. ये किया, watched film with XYZ, had dinner with XYZ, इस तरह करके. And then it moved to paragraphs कि आज मैंने ये किया. Now it's all about मैं कैसे feel कर रही हूँ. It will be so random. I felt this, I felt that, I didn't feel this way, I was thinking this way. So I think जितना आप actively किसी चीज़ को practice करोगे, the more you will feel yourself getting in tune with it. Don't you think so? Yeah, I agree. आपको थोड़े से रेजिस्टेंस खुद से आती हुई फील होती है, but then slowly you get into that. I feel like the more you do that, you have to be it's gonna be बहुत तरीकों से इसको देखा जा सकता है, लेकिन you have to be enough for yourself and in some ways at least. क्योंकि everyone like in this point of life, ये जब आप अपनी 20s में होते हैं तो आपके सब दोस्त भी 20s में होते हैं ना. Everyone is dealing with their own thing. तो you need this. It's मुझे लगता है आप बचपन से सिखाना चाहिए अपने बच्चों. You're absolutely right. Think about it. Go think about how you're gonna fix it. Tell me, then I'll help you. थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंस की तरफ शुरू से. इट्स नॉट जस्ट एकदम से आप अगले को कहो कि हाँ now you're 18 get out. ये नहीं होता. शुरू से थोड़ा बहुत. और सबसे ज़्यादा अभी जैसे बाहर जाते हैं लोग, I've heard unfortunately इतनी दफ़ा कि people go and they are depressed, loneliness से, and they don't survive that. पढ़ने जाते हैं बच्चे और वो नहीं आ पाते हैं वापस, तो क्योंकि वो कभी अकेले नहीं बैठे होते ना. And your thoughts mind is a very scary place to be in. So you have to get familiar आहिस्ता. Yeah. What is some advice or something you would like to share with our audience today, especially those women जो कि public spaces को occupy करें their own manners? It could be riding a bike, it could be so many other contexts. Every woman has their own journey, has their own battle. So if there's any advice, anything you feel you have learned over the years that you would like to share, maybe through your brother even. Yeah, sure. I have advice for men first. Sure. Why not? सबके लिए. हाँ, I feel like मेरे comment section में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी friends बहनों को टैग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इसको देखो और नहीं, they're encouraging. और फिर उनके replies में mostly आता है मुझे सिखाओ. तो ना I wanna say कि you need to, अभी आप हैं authoritative position में in more ways, आप हमेशा ही रहेंगे. There is a dynamic, it's a long way जब हम जाके वो यहाँ तक आए. Yes. बहुत मुश्किल है, बहुत देर लगेगी, impossible नहीं है, लेकिन हाँ एक है चीज़ उसको it starts from that place जहाँ पे जिसके पास control होता है. तो be open to it. Teach them how to ride a motorcycle, how to drive a car. If you think women are stupid on the road, make sure your sister isn't. Start doing those things, तभी you can do something about the problems you are always talking about in your guy groups.
you're so frustrated, do something about it. You definitely have that power and you have that opportunity. If you don't have sisters, you must have cousins, you have friends, you will have a वही daughter. ट्रांसलेट तो लड़की कुछ होगी तो सब होगा। तो आप उस चीज से ना फरार नहीं हासिल कर सकते. Just saying that I am a good man doesn't make you a good man. If you are a good man, then you will be more focused on what you are doing about the ones who are not, than making sure सबको पता हो I'm a good man. जी ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है कि जब हम बात करते हैं इस बारे में तो people more like focus on this more कि मुझे तो नहीं तुम कह रही, आप सिर्फ बात कर रहे होते हो कि this is a problem, लेकिन that becomes about them then. तो that's that. I think वो बहुत important है. And for women, I would really encourage people to be curious and find information. yeah If you are going to anyone who's starting a job sitting in around men in that environment, जहाँ yeah you will have to talk about things आपको annoy करेंगी जब they're making fun of some other woman. Have enough information to calm yourself जी and then state facts. ऐसे बात करें कि फिर कोई जवाब ना हो. उन चीज़ों पे बात नहीं करें जो आपको पता है are making you more vulnerable to be attacked. It's unfortunate कि हमारे पास as women we don't have the margin to make such errors. जी अगर मैं बात कर रही हूँ to so like it's I don't know how this is gonna come across, but जब आपने मुझे when you reached out to me, my first concern was कि is the host a man? क्योंकि mostly मेरे नाम से पता नहीं चलो नहीं maybe मुझे था कि क्या पता आपने ना लेना इंटरव्यू, maybe Oh, yeah. reaching out to Good me point. then, हाँ. yeah तो मैंने देखा कि अच्छा कौन होगा ना जिससे बात करनी है, बिकॉज अगर what if like their concern is to try to get something out which just gets viral I or like understand call me stupid या होता है, it's very no, it's natural. very valid यहाँ पे ऐसे है, हर Yeah. जगह है, बाहर भी हो रहा है. जी तो when you're talking about anything you need to have enough information to talk. तो वो है, that is the advice. Read more, talk more, नहीं not necessarily read, like आप Instagram पे इतनी चीज़ें देखते हैं, अपनी feed को उस तरह से करें ना डिज़ाइन कि आपके पास information आए, yes and then make sure that's the correct one. तो learn things, then talk about them, make a difference. I think that is some pretty good advice. Kafi to the point, and I think it's going to be very fruitful to our audience. Thank you so much for joining. I Thank think you. we just like हमारी conversation में I hope that it can instill some sort of change. आपकी सोच, आपका नज़रिया, आप कोशिश करें to make some sort of change, accountability हो, या कोई patterns आप recognize करें, and you think hard. चाहे आप आदमी हो औरत हो, no matter what your gender is, and do share your views with us. We're more than eager to read what you have to say. If you're someone who rides a bike, अपने experiences share करें with us, and I will catch you in another episode very soon. Till then, take care. Khudafis.